यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे आधमरा छोड़कर चले गए। Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves who stripped him of his clothes, wounded him, and departed, leaving him half dead. तो ये आदमी कहाँ था? Where this man was? ये यरूशलेम में था He was in Jerusalem. और इसने एक दिन यरूशलेम को छोड़ दिया। And one day he left Jerusalem. तो बाइबल में जो यरूशलेम है, ये यरूशलेम स्वर्ग को दर्शाता है और परमेश्वर को दर्शाता है, यीशु को दर्शाता है। In Bible, this Jerusalem represents heaven, it represents Jesus, and it represents God. ये परमेश्वर के साथ एक था ये इंसान। This man was one with God. ये परमेश्वर के साथ था, स्वर्ग में था, स्वर्ग की खुशी में था, स्वर्ग के आनंद में था। He was with God. He was like living peacefully with God in heaven. लेकिन एक दिन इसने क्या किया? But one day what he did, वो स्वर्ग का जीवन छोड़ के ये यरीहो के जीवन में चला गया। he left the life of heaven and he was going to the way of Jericho. तो ये आदमी अदन के बाग में था, See, he was in the Garden of Eden. लेकिन इसने छोड़ करके ये मिट्टी में उतर आया। But he left and he went to the ground. और हम यरूशलेम छोड़ के यरीहो को जाने वाले लोग मतलब क्या है? What it means by a person who left the Jericho and Jerusalem and going to Jericho, हमने स्वर्गीय खुशी और स्वर्गीय शांति को खो दिया। we're leaving the happiness and like happiness of Jerusalem. हमने परमेश्वर के साथ रहने का जीवन खो दिया। The life of living with God, we left that. और यरीहो मतलब क्या है? And what it means by Jericho, ये संसार में हमारा मन गिर गया। our hearts fall into this world. हम इस संसार में गिर गए। We are fall into this उस world. समय में क्या हो रहा है? At that time, what happened? जब यह आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, When this man was going from Jerusalem to Jericho, ये सोच रहा था यरीहो में मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, बी करूंगा, सी करूंगा, डी करूंगा। he thought that in Jericho, I'll do this, I'll do A, I'll do B, I'll do C. इसका मतलब क्या है? What it mean? हम लोग इस संसार के प्रति ऐसा मन रखते हैं, We have such kind of heart toward this world. मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा, I'll be a successful man. मैं ये परिवार को अच्छा बनाऊंगा, I will make my family मैं good. नौकरी करूंगा, शादी करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मेरा जीवन महान करूंगा। I'll get married, I'll make my life like this, and I'll make my life very successful. तो anyhow हम सब ऐसा सोचते हैं। Anyhow, we all think in this way. लेकिन ये आदमी जब यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, But this man, when he was going from Jerusalem to Jericho, ये किससे मिला? to whom he met, लिखा है वो डाकुओं से मिला। it's written that he made the thief. तो रास्ते पे इसने डाकू मिलेंगे ऐसा सोचा नहीं था, He never thought that on the way he will meet thief. लेकिन जब डाकू मिले, But when he met the thief, डाकुओं ने क्या करा? what did the thief do? डाकुओं ने इसको अधमरा बना दिया। Thief made him half dead. इसका मतलब क्या है? What this means? ये डाकुओं ने इसको अधमरा बना दिया और उसके कपड़े उतार लिए, ऐसे लिखा है। It's written that the thief made him half dead and took all of his clothes. तो ये डाकू कौन दर्शाते हैं पता है आपको? To whom this thief is like represent, you know? ये कौन से डाकू है? कपड़ा लेके जाने वाले डाकू। What kind of thief is who takes the clothes? सोना लेके जाते हैं, चांदी लेके जाते हैं, वहां तक ठीक था, I can understand when he take the gold or silver. लेकिन ये तो कपड़े लेके जाने वाले डाकू, ये कौन से डाकू हैं जो कपड़ा ले जाते हैं? But this thief, it takes the cloth. What kind of thief he is? तो बाइबल में जो कपड़ा दर्शाता है वो धार्मिकता को दर्शाता है। So in the Bible, the clothes, it represent the righteousness. तो उसकी धार्मिकता उतार ली जाती है, So his righteousness was taken off. और धार्मिकता को उतार ली जाती है मतलब क्या What है? it means by taking off the righteousness, ये जो डाकू है ये व्यवस्था को दर्शाता है। this thief, it represent the law. ये डाकू जो है ये व्यवस्था को दर्शाता है जो इस इंसान की धार्मिकता पूरी निकाल देता है। This thief, it represents the law who takes all the righteousness. अगर आप व्यवस्था को ठीक रीति से मिलते हो तो When you meet the law correctly, व्यवस्था आपको ये पापी होने का ज्ञान देगा। law will give you the knowledge of sin. तुम पाप में जन्मे हुए पाप के पुलिंदे हो। You are born in sin. अगर आप रोमियो उसका 3 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे तो If you read Romans chapter 3 verse 20, तो व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बनाता, व्यवस्था आपको पाप का ज्ञान करके देता है। law does not make you righteous, but it gives you the knowledge of sin. तो व्यवस्था आपको पाप का ज्ञान करके देता है, तब आपकी धार्मिकता व्यवस्था आपकी धार्मिकता को उतार देता है। So the law gives you the knowledge of sin, and the law, it takes off your righteousness. तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, अच्छा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, ये जो सोच है आपके पास, The thought that you have that I do good, I'm a good person,
ये सारे आपकी धार्मिकता को कौन उतार देता है? All this righteousness who take off? ये धार्मिकता निकाल देता है व्यवस्था। The law, it takes off all your righteousness. मतलब क्या है? What it means? आपके ढोंगी जीवन को निकाल देगा वो। It takes off your hypocrisy life. आपका जो झूठा धार्मिकता है उसको निकाल देगा वो। The like fake righteousness, it takes off. तो ये आदमी के कपड़े उतार दिए और उसको अधमरा कर दिया ये डाकुओं ने। This thief made this man, he took off his clothes and made him half dead. तो हमारा जो आत्मिक जीवन का जर्नी है, So the journey of our spiritual life, अगर आप इन डाकुओं से नहीं मिलोगे तो if you don't meet this thief, आपको दो चीज रियलाइज नहीं होएगा। then you will not realize two things. आपको आप पाप के अंदर मरे हो ये आपको समझ में नहीं आएगा, You will not know that you are already dead in sin, और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपकी धार्मिकता ये झूठी धार्मिकता है, ये समझ में नहीं आएगा। and you will not know that the righteousness that you have, that is a fake righteousness. तो अगर आप व्यवस्था से ठीक रीति से मिलोगे तो If you meet with the law precisely, जैसे ये आदमी डाकुओं से मिला, just like this man meet the thief, डाकुओं ने जल्दी से इसको पकड़ के उसके कपड़े पहले निकाल दिए। the thief first he took off his clothes. मतलब क्या है? What it means? ये जो व्यवस्था 10 आज्ञा है ना, 10 आज्ञा, These 10 commandments. ये 10 आज्ञा आपके सारे झूठे धर्म के काम को निकाल देते So हैं। these 10 commandments, it take off all your fake religious work. तो आपके जो धर्म के काम जो आप इंसान को दिखाते हो, The righteous work that you show to the people, वो सारे इंसान को दिखाने वाले झूठे धर्म ये व्यवस्था पूरा तोड़ फोड़ कर देती है। this law, it takes off all your fake religious work. ऐसा व्यवस्था होता है, So this is what law लेकिन लोग is. व्यवस्था से ठीक रीति से मिले नहीं है। But people did not meet the law precisely. ये जो व्यवस्थापक है ये व्यवस्था से नहीं मिला हुआ व्यवस्थापक है। So this lawyer, he did not meet the law precisely. इसके लिए वो सोचता है कि मेरे कुछ करने से मुझे अनंत जीवन मिलेगा। That's why he thinks that by his work he can have eternal life. इसके लिए यीशु के सामने आके पूछता है कि मैं क्या करूं ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। That's why he come before Jesus and asks, what should I do to have eternal life? आप सोचो इसके बारे You में, think about this. अगर ये व्यवस्था से मिला होता तो If he meet the law, तो ये क्या जानता? what he would know? हाँ, मेरे पास धार्मिकता नहीं है, I don't have righteousness. मैं पाप और मृत्यु में हूँ, I am dead in sin. मेरे धर्म के काम सब मैले चिथड़े हैं, All my religious works are wicked. मैं पाप और मृत्यु में जन्मा हुआ हूँ। I am born in sin and death. ये व्यवस्थापक को जानना जरूरी था, This lawyer should know this. लेकिन ये व्यवस्थापक चोर और डाकुओं से नहीं मिला। But this lawyer did not meet the thief. इसके लिए ये अभी भी अपने ही कपड़े यीशु को दिखा रहा है। That's why he is still showing his clothes to Jesus. ये अभी भी ऐसे दिखा रहा है जैसे कि अनंत जीवन उसके पास है। He is still showing that he have that eternal life with him. इस प्रकार का भ्रम का जिंदगी वो जी रहा था। Such kind of illusion world he was living. इसके लिए यीशु उसको क्या बोलना चाहते थे? That's why what Jesus want to say to him, सच में तुझे व्यवस्था अभी समझ में आया है? truly do you even know the law? सच में तू परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और अपने प्राण से परमेश्वर से प्रेम करता है? Do you love God? Do you love your Lord your God with all your mind, with all your strength and with all your soul? सच में तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करता है? Do you love your neighbor as yourself? या फिर सारा नाटक करता है? All this is hypocrisy. तो क्या करता है तू? What do you do? यीशु उसको बोलना चाहते हैं सब तेरे धर्म के काम झूठे फटी हुई चिथड़े हैं। So Jesus want to say that all your religious work are like filthy rag. एक बार यशायाह की पुस्तक में देखेंगे, Let's see Isaiah. यशायाह की पुस्तक एक बार आप खोलिए, Isaiah. वहां पे क्या लिखा हुआ है? What is written there? यशायाह उसका 64 अध्याय 64, आइज़ाया चैप्टर 64, Isaiah chapter 64, उसका 6 वचन। verse 6. यशायाह उसका 64 अध्याय 6 वचन। Isaiah chapter 64, verse 6. तो क्या लिखा है वहां पे? What is written there? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। But we are all like an unclean things, and we all our righteousness are like filthy rag. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. और ये आदमी जब यीशु के सामने आया, ये व्यवस्थापक, This lawyer, when he came before Jesus, ऐसे आना चाहिए था।
He has to come in this way. कैसे आना चाहिए था? How he has to come? हे यीशु, मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ, Hey Jesus, I'm an unclean person. मेरे धर्म के काम सब मैंने चिथड़े हैं, All my righteousness things are filthy rags. मैं पहले ही पाप और मृत्यु में हूँ, I am already in dead and sin. मेरे जो धर्म के काम दिखाने का मैंने जो नाटक किया, मैं एक नंबर का ढोंगी और नाटकी हूँ। The righteousness that I was showing, this all are acting. It's all act. ऑल आर फेक, All are fake. मैं सिर्फ झूठा हूँ, I'm just fake. मेरे सारे धर्म के काम मेले चिथड़े हैं। All my righteous works are filthy rags. ऐसे उसने यीशु के सामने आना चाहिए था, He should come in this way. लेकिन कैसे आ रहा है? But how he was coming? मैं क्या करूँ ताकि मुझे अनंत जीवन मिले? What should I do to have eternal life? ऐसा क्यों होता है? Why such thing happened? क्योंकि आप वो चोर और डाकुओं से नहीं मिले। Because you did not meet the thief. अगर आप चोर और डाकुओं से मिलोगे तो क्या होगा? If you meet the thief, what will happen? वो आपके सारे कपड़े उतार देगा। He will take off all your clothes. इसका मतलब क्या है? What this means? ये डाकू कौन है? Who is this thief? यहाँ पे देखिए डाकू, ये चित्र में आप देखिए बहुत सारे डाकू दिखाई देंगे। You will see in this picture there's a lot of thief. थोड़ा सा पिक्चर दिखाना है वो डाकुओं का। You show the pictures of the thief. तो यहाँ पे बहुत सारे डाकू है। See, you can see here that there's a lot वो of thieves. बेचारा अकेला That person alone, और डाकू बहुत है। and there's a lot of thieves. उन्होंने क्या कर रहे हो लोग? What they are doing? पहले तो उसके कपड़े उतार दिए First, they are taking off their clothes, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? and after that, what they are doing? उसको हथमारा बना रहे हैं, Making him half dead, उसको जख्मी बना रहे हैं। making him wounded. ये कौन करता है पता है आपको? Who does that? You know? ये व्यवस्था करता है, व्यवस्था। Lord do that. ये व्यवस्था करता है। Lord do that. आपको मालूम है बाइबल में कितनी व्यवस्था है? Do you know how many laws are there in the Bible? 613 नियम और आज्ञाएं हैं। There are 613 laws. और उनमें क्या लिखा है पता है आपको? And what is written there, you know? तू ऐसा करो बोल के लिखा हुआ है, You do this, it is और written तुम in such ऐसा a way. मत करो बोल के लिखा हुआ And you है। don't do this. अगर ऐसा किया तो श्राप मिलेगा, वैसा नहीं किया तो श्राप मिलेगा। कंटिन्यू ऐसी बातें So हैं। it's written that if you don't do this, you'll be cursed. तो मैं आपको सभी बातें तो नहीं बता So सकता, I cannot say all the things, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था का झलक लेंगे, झलक। but let us have a slight हाँ, of तो मैं आपको law. थोड़ा सा डाकुओं से मिलाता हूँ आज। I want to let you meet the thief. मिलना चाहेंगे? Do you want to